How to Tell Wild Animals. This is very humorous poem, suggests some dangerous way to identify or to tell something or to say something. Wild animals. Very humorous, but in a very different way. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. Actually, it is not poet, but poetess है और इसका नाम है कैरोलिन वेल्स. नेम ऑफ द पोएटेस कैरोलिन वेल्स. जो आपको एकदम नीचे पता चलेगा, मैं आपको बता दूं. 4 5 6 स्टैंडा है. इट्स अ लॉन्ग वन. तो इफ यू कैन सी, कैरोलिन वेल्स पोएटेस है, मतलब के पोएट नहीं है. नाउ straight away to summary of the poem. First of all, I would like to mention about Caroline Wells. June 18, 1862, March 26 to 1942. 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के वक्त वो मर गए थे, बट अपने कंट्री का नहीं है. अमेरिकन राइटर. नाउ स्ट्रेट अवे समरी. If by chance you go to any forest in the east, and if a huge terrible animal comes to you, and if it roars or growl loudly, and if you are dying, then you will come to know that it is an Asian lion. If you are dying, then you will come to know about Asian lion. Asian lion, very famous. Asiatic lion, they are very rarely available apart from India. Second stanza में ऐसा है. If a wild animal with a black strips, bands होते हैं ना, black strips, on yellow hide, hide मतलब चमड़ा, skin, animal skin, welcomes you and eats you, आपको खा जाते हैं, then this simple rule will teach you that it is a Bengal tiger. अब Bengal tiger भी बहुत कम है. Generally on the eastern side of the country आपको West Bengal और East Bengal में देखने को मिलता है. When strolling, strolling मतलब walking very leisurely, आराम प्रिय, धीरे धीरे आराम से walk करते हैं ना, उसको बोलते हैं strolling. Strolling means walking very leisurely. If you see whose hide मतलब के skin is covered with spots and it jumps at you and starts eating you, आपको खाने लगे, then you understand that it is a leopard. बहुत सारे हम लोग नहीं, जो मास्टर लोग हैं ना, उनको भी प्रॉब्लम होती है to recognize a leopard, चीता. चीता आप लोगों को 9th लेसन में विपिन सर ने समझाया होगा. और चीते की स्पीड भी 96 किलोमीटर पर आवर. वो जब दौड़ता है ना, टेरिफिक स्पीड. लेपर्ड इतनी स्पीड से नहीं दौड़ सकता. और लेपर्ड और चीता में चीता क्वाइट डेंजरस. देयर विल बी नो यूज. और आजकल जो अपने यहाँ गुजरात में दिखते हैं सब गाँव में, वो चीता नहीं है. माइंड वेल. There will be no use of shouting with pain because it will continuously eat you. अब हम लोगों को कोई खा रहा है तो how can we able to speak in fact, especially wild animals. It is quite humorous and something in a different way to express her feeling. If you are just walking around in your yard मतलब के backyard, जिसको हम लोग बोलते हैं गुजराती में पीछे का वाड़ा, या तो हम लोग ऐसा बोलते हैं घर खत्म होने के बाद जो खुली जगह होती है वो. इन योर यार्ड एंड एन एनिमल मीट्स यू एंड इट हग्स यू वेरी टाइटली. It hugs you very tightly, then believe that it is none other than a bear. Reach भालू. एक एक का डिफरेंट वे उसने पोएटेस ने डिस्क्राइब किया है. If you have any doubt, then I think that it will kiss you. A novice, बहुत अच्छा वर्ड है. novice मतलब के बिगिनर, इनिशिएटर, नियोफाइट और न्यू बिगिनिंग. जो नया काम करता है, पहली बार करता है, इसको हम लोग novice बोलते हैं, नियोफाइट बोलते हैं, बिगिनर बोलते हैं. राइट. novice may be confused to recognize animals. Those who are new, and especially when someone is hugging you, embracing you so tightly that you are supposed to die. Such a humorous way. Now, important one. You can differentiate between crocodile and hyena. कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन
हायना करते हैं, कई लोग इसका प्रोनाउंसिएशन हायना करते हैं, और हम लोग कभी कभार गुजराती लोग है ना ऐसा करते हैं. You can differentiate between crocodile and hyena. Hyena always smile, cunning smile. आपको खाने वाला है ना, तो cunning smile. But if tear comes from its eyes, then it is a crocodile. दोनों अलग दिखते हैं, फिर भी उसने कैसा डिफरेंशिएशन निकाल दिया वो पोएटेस कैरोलिन ने, आई डोंट नो. तो हाउ यू कैन डिफरेंशिएट, मतलब कि एक टोटली स्माइल करके, कनिंग स्माइल करके आपको मारेगा, और दूसरा क्रोकोडाइल टीयर्स. हम लोग कभी कभार जो एक्चुअली आई शुड नॉट गिव एग्जांपल, बट जस्ट नाउ एन इश्यू अकर्ड प्रेजेंट contemporary way when our prime minister supposed to give a lecture और वो उसकी आंखों में से आंसू आ गए, तो अपोजिट पार्टी ने ऐसा बोला कि दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स. कोई झूठ मूठ के आंसू बहाता है और फिर बाद में सबके जाने के बाद हंसता है, दैट इज सेड टू बी क्रोकोडाइल टीयर्स. So you can differentiate between crocodile and hyena. Hyena always smile, but if tear comes from its eyes, then it is a crocodile. And lastly, an original chameleon. इसका प्रोनाउंसिएशन कैमेलियन है. कई लोग चैमेलियन भी बोलते हैं, चैमेलियन गलत है. Chameleon is like a lizard. It has got, you must be knowing science, it has got the property of camouflage. Means whatever it adopt the atmosphere, it can catch that color. Green पत्ते पे बैठा, green color acquire or get. ब्राउन कलर के ऊपर बैठा, ब्राउन कलर एक्वायर. ऐसा वो कलर एक्वायर करता है. तो प्रॉपर्टी ऑफ एक्वायरिंग कलर इसको बोलते हैं कैमोफ्लेज. तो एन ओरिजिनल कैमेलियन इज लाइक ए लिजर्ड. इट डज नॉट हैव ईयर्स, उसको कान नहीं होते, और इवन विंग्स, इवन देन इट कैन फ्लाई और जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, इवन देन यू विल फाइंड देयर अ कैमेलियन. तो हम लोगों ने पहले में देखा लायन, देन कम्स बंगाल टाइगर, देन कम्स लेपर्ड, देन कम्स bear, then comes your crocodile as well as hyena, differentiation between two, and ultimately we have seen chameleon. ऐसा मैं आपको वापिस से भी बता सकता हूं. फिर स्ट्रेट अवे विल स्विच ओवर टू सब पैराग्राफ एंड देन स्ट्रेट अवे टू फिगर ऑफ स्पीच या तो पोएटिक डिवाइसेस. तो अल्टीमेटली मैं एकदम फास्ट वापिस से बता देता हूं. द पोएटेस कैरोलिन वेल्स has very humorously suggested some dangerous way to recognize, to identify wild animal as we mentioned. What does she say? She says that if by chance one is in the jungle of the east and an animal comes close to you and roars very loudly, then you are so afraid that you feel as if you are dying, then one can be sure that it is nothing but Asian lion. लायन से तो हर कोई डरता है, तो हम लोग तो डरेंगे ही ना. When you see a magnificent animal with black strips, पट्टे, on his yellow hide, hide मतलब skin, and you feel it has come to greet, तुमको वेलकम करने आया है, greet you, but start eating you immediately. कोई वेलकम करके खाता है क्या? Then this is a simple rule to keep in the mind that animal is none other than is Bengal tiger. If you see an animal who has a hide या तो skin which looks like it has been sprinkled, स्प्रे किया हो ना ऐसे, पेपर, इसको पेपर मत बोलना और पीपर मत बोलना, बीच का वर्ड है पेपर. मरी बोलते हैं ना हम लोग, वो जूस वगैरह पीते हैं, इसमें जूस नहीं सॉरी सूप, इसमें डालते हैं वो मरी, वन काइंड ऑफ कॉन्डिमेंट्स राइट, और या तो स्पाइसेस बोलते हैं. तो स्प्रिंकल एंड पेपर इन इट and it lives on you. Even if you cry with pain, it is leopard, it will keep on pouching you. आपके ऊपर जंप करेगा ही करेगा. If you are walking around your backyard or alone, then you meet a creature there who it will be comes to you, hugs you very hard, then be sure that is none other than bear. And before you doubt it, identify and give something you, that it will come and give you one more tight hug. It is none other than bear. और वो आपको फिनिश करके ही छोड़ेगा, इतना टाइट हग होता है. There are some very weird मतलब के विचित्र किस्म के, बिजारे
weird animal, you will be able to know crocodile from hyena, because hyena makes a sound which is like a human laughter, while the crocodile sheds the big tears while eating its prey. So don't be near either of them. Both of them, they are taking their prey in a different way. Ultimately, I told you, chameleon looks like a lizard, but it is like having a property of camouflage. Chameleon changes his color according to surrounding. He has no ears or wings. If you are looking for it on a tree and trying to search one, and you can see nothing, then one can be very sure about that chameleon is there, and we should not go surrounding that. Now हम लोग एक एक स्टेंजा के ऊपर जाएंगे और फिर फिगर ऑफ स्पीच देखेंगे. फर्स्ट कम फर्स्ट, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस टू जंगल इन द ईस्ट, अगर आप लोग ईस्ट की ओर जाए, इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट. टॉनी अच्छा वर्ड है. टॉनी मतलब एन ऑरेंज ब्राउन और येलोइश ब्राउन कलर. टॉनी बीस्ट मतलब के सेवेजियस वाइल्ड एनिमल, बीस्ट इसको बोलते हैं. इफ ही रोर्स, if he not only roars but it can growling, right? So if it roars or growl, you can understand that. What you can understand that it is nothing but a Asiatic lion or Asian lion. Next one आप लोग क्या देखते हैं? और if sometime when roaming around, roaming मतलब wandering, एक जगह से दूसरी जगह घूमते भटकते हैं, roaming wandering, a noble wild beast, देखो कैसे बोलते हैं noble, ऐसे एनिमल को नोबल थोड़ी बोलते हैं. ग्रीट्स यू, वेलकम यू विद ब्लैक स्ट्रिप्स, जो आप लोग देख रहे हैं, ऑन ए येलो ग्राउंड. जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न. दिस इज नन अदर देन बंगाल टाइगर. और डिसेंट का मतलब यहाँ पे होता है आइडेंटिफाई. डिसेंट मतलब आइडेंटिफाई. बहुत अच्छा वर्ड है. नेक्स्ट वन नंबर 3, इफ स्ट्रॉलिंग, मैंने आपको बताया था वॉकिंग अबाउट इन अ लीजर वे. लीजर मतलब आराम से. आपको इसके ऊपर ऐसे भी पूछ सकते हैं, लीजर मतलब के टाइम पास ऐसा बोलते हैं, आराम से. whose hide his skin with spots, देखो आप लोग स्पॉट्स, is peppered मतलब के स्प्रिंकल स्प्रेड as soon as he has leapt on you, आपके ऊपर जब जंप करता है ना, we will know it is none other than leopard. It will do, इसको कैसे पढ़ते हैं? It will do no good to roar with pain. एक बार उसके पाउचिंग के इसके झपट में आ गए, he will only lap and lap again. ये है ना ओल्ड वर्जन ऑफ इंग्लिश है, जो LEAP लिप का, राइट, ओल्ड वर्जन इंग्लिश है LEP LEP. ये पोएट ऐसे कुछ अल्ट्रा वर्जन अपना कुछ करिश्मा दिखाने की वजह से ऐसे वर्ड को चेंज कर देते हैं. लिप मीन्स जंपिंग, जंपिंग ऑन एंड ऑन. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. लुक एट दिस भालू, रीच एंड बेयर. If when you are walking around your yard, backyard, you meet a creature there, इसको creature नहीं बोलते, creature बोलते हैं, who hugs you very very hard, be sure it is none other than bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caressing. Caressing मतलब cuddling, very soft touch, जिसके हम लोग बोलते हैं ना feeling वाला touch, right? Covered ऐसा बोलते हैं कि caressing मतलब कि cuddle भी बोलते हैं, या तो इसका gentle loving touch, but यहाँ पे ये humorous way है. It is not a loving or gentle touch. And ultimately in the last paragraph, sorry, last but one, though to distinguish or differentiate beast of prey, a novice, a new, something new, a neophyte, a beginner or initiator might nonplus matlab confused, perplexed, baffled, confused, perplexed or baffled. Nonplus, nonplus matlab negative नहीं हुआ, huh? The crocodile you always may tell from hyena thus. They are how differentiate. Hyenas come with merry smile. वो जब अपने prey या तो अपना शिकार करता है ना, तो एक cunning smile दिखता है. While if they whip, they are crocodile. और crocodile क्या करता है? वो आंसू बहाता है, अपने prey, अपने शिकार को लेता है. But it's a crocodile tears. So that is the difference between the crocodile and hyena. Last and final, the true chameleon is small. अपने यहाँ खेतों में या तो रास्ते में भी दिखते हैं, बट वो कैमेलियन नहीं होता.
वो अलग नाम होता है. It's a kind of lizard, sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing as well. If there is nothing on the tree, it is chameleon you can see, and you have to keep aloof from that. Apart from that, you have to keep away from that because it's very dangerous one. Now straight away, I will switch over to poetic devices because before the time will run away. बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, पोएटिक डिवाइसेस है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखते जाना क्योंकि आपका फिगर ऑफ स्पीच इज नॉट ए कप ऑफ टी फॉर ऑल. फर्स्ट वन, फर्स्ट लाइन, इसको आप देखे तो, इफ एवर यू शुड गो बाय चांस, मेटोनॉमी है. मेटोनॉमी अगेन आई विल एक्सप्लेन. द वर्ड, वन वर्ड इज यूज फॉर द अदर. एक वर्ड दूसरे वर्ड के बदले सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटोनॉमी. द वर्ड जंगल ऑफ ईस्ट represents some country of Asia where the lion generally found. Second line, and if there sound to you advance a large and tawny beast, ये दोनों साथ में ले लेना, ये और ये. And if there sound, sorry, there should to you advance a large and tawny beast, वो भी मेटोनॉमी है. Again a metonymy, one word is used for the other, one word is substituted for the other. The word large and tawny beast represent none other than lion. Third one भी देखो, if he roars at you, you are dying, you will know it is Asian lion. यहाँ पे एक onomatopoeia है. क्यों सर? म्यूजिकल साउंड थोड़ी है. roar represent sound, कोई भी साउंड हो, म्यूजिकल हो कि roaring साउंड हो कि growling साउंड हो, it is onomatopoeia. और रिपीटेशन भी है, यू 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 यू, राइट, यू एंड यू. तो देन फर्स्ट स्टेंजा इज ओवर, उसकी फिगर ऑफ स्पीच भी ओवर. अब सेकंड स्टेंजा में आते हैं. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड ए नोबल वाइल्ड बेस्ट ग्रीट्स यू, यहाँ पे बहुत सारी है. एक तो एलिट्रेशन है, कॉन्सोनेंट आर इज रिपीटेड. दूसरा है फैंटास्टिक फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन. तो आप लोग बार बार पूछेंगे, जो लोग मेरा स्टेटस देखते हैं ना, मैंने बीच में ऑक्सीमोरॉन लिखा था. टू कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड विदाउट गेटिंग एनी कॉमा, एनी कंजंक्शन और एनी कंजक्शन. आप लोग बोलेंगे तो आज वापस रख दूंगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरॉन. यहाँ पे दो वर्ड है, नोबल एंड वाइल्ड. देखो, नोबल वाइल्ड बाजू बाजू में, बिना कॉमा, बिना कनेक्शन, बिना और एंड, कुछ भी लिए बिना. That kind of word used together to give a new meaning, that is tiger is a magnificent but wild animal. ऐसे वर्ड को contradictory oxymoron बोलते हैं. दो अपोजिट वर्ड बिना कॉमा, बिना कनेक्टिव, बिना कंजंक्शन आता है, इसको बोलते हैं ऑक्सीमोरन. और एक भी है पर्सोनिफिकेशन. द टाइगर इज गिवन ह्यूमन ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीटिंग और वेलकमिंग. नेक्स्ट वन, विद ब्लैक स्ट्रिप्स ऑन ए येलो ग्राउंड, मेटाफॉर है. यहाँ पे इंप्लाइड कंपैरिजन है, टाइगर और ग्राउंड. हाइड ऑफ स्किन ऑफ टाइगर एंड ग्राउंड, द पॉइंट ऑफ कंपैरिजन इज नथिंग बट बैकग्राउंड. इसके बाद जस्ट नोटिस इफ ही ईट्स यू, आयरोनिकल है, आयरनी. ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन का 5 फिगर ऑफ स्पीच है. एंटीथेसिस, ऑक्सीमोरॉन, एपिग्राम, पैराडॉक्स और आयरनी. ये 5 में से एक ऑक्सीमोरॉन बता दिया अभी, और दूसरा आयरनी. आयरनी बहुत कम मिलेगा पूरे के पूरे 11 पोएम में, इसमें से ये एक है. मीनिंग इज एग्जैक्टली अपोजिट. हाउ कैन वन नोटिस इफ वन इज ईटन और वन इज किल्ड? वो तो नोटिस ही नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट वन, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसेंड. डिसेंड मतलब आइडेंटिफाई, नोटिफिकेशन. यहां पे एनास्ट्रॉफी है. एनास्ट्रॉफी मतलब जंबल वर्ड. इन्वर्जन, इन्वर्जन इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ पोएटिक वर्ड. पोएट थोड़ा प्रोस जैसा हो तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए वर्ड को इधर उधर कर देता है, जंबल कर देता है, उसको बोलते हैं एनास्ट्रॉफी. एपोस्ट्रॉफी और एनास्ट्रॉफी में फर्क है माय डियर स्टूडेंट्स. दूसरा इंटरनल राइम है, लर्न एंड डिसेंड यूज इन द सेम सेंटेंस फॉर पोएटिक इफेक्ट. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में. बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच है, आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना पड़ेगा. इफ स्ट्रॉलिंग, स्ट्रॉलिंग मतलब के रोमिंग, वॉन्डरिंग, वॉकिंग लीजरली. फोर्थ मतलब के आगे, अ बीस्ट यू whose height with spot is papered. दो लाइन की फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं. यहाँ पे भी एनास्ट्रॉफी है, इन्वर्जन है, जंबल वर्ड है, और मेटाफॉर भी है. इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन हाइट ऑफ ए लेपर्ड एंड, चलो
रनिंग आउट ऑफ टाइम, मतलब 10 मिनट है मेरे पास. Hide of leopard and some dish that has been sprayed with paper on the body. The point of comparison is black dot या तो that paper. Number 9, figure of speech. As soon as he has leapt on you, ये देखो, as soon as he has leapt on you, you will know it is leopard. एक तो रिपीटेशन है you, एलिट्रेशन है, साउंड भी रिपीट होता है, he has, I, lap, leopard, ll, I, ऐसे वर्ड रिपीट होते हैं तो रिपीटेशन बोलते हैं, एलिट्रेशन भी है. तो नेक्स्ट वन, it will do no good to roar with pain, he will only lap and lap again. रिपीटेशन है यहाँ पे, एलिपी लैलिपी, रिपीटेड फॉर पोएटिक इफेक्ट. एंड लिटोर्स है, लिटोर्स मतलब अ नेगेटिव वर्ड इज यूज्ड टू कन्वे द पॉजिटिव मीनिंग. जनरली कई बच्चे नेगेटिव वर्ड को नेगेशन ही लिख देते हैं. नो, नॉट, नेवर देखा नहीं कि उन लोगों ने लिटोर्स लिखा नहीं, बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट. अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, इसका स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव होता है नो नॉट नेवर का, that thy tooth is not so keen. not so keen मतलब के राइट, blunt. ऐसा हो तो ही हम लोग इसको बोलते हैं. अदरवाइज आपने नो डायबिटीज, नो हार्ट प्रेशर, नो हार्ट अटैक ऐसा आया तो इसको आप लिटोर्स नहीं बोल सकते, ये क्लाइमैक्स है. वो आप लोगों को जब मैं फिगर ऑफ स्पीच एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा. नेक्स्ट वन, अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. वी हैव गॉट लिटिल टाइम. इफ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, if when you are walking around your yard you meet a creature there, एक तो एनास्ट्रॉफी है, इन्वर्जन है, रिपीटेशन भी है, रिपीटेशन में यू है, और एलिट्रेशन में y इज रिपीटेड, योर, यू, यार्ड, w, ये सब रिपीट करते हैं, इसलिए उसको एलिटरेशन बोलते हैं. अब देखो, who hugs you very very hard, be sure it is bear. पर्सोनिफिकेशन है, यहाँ पे बेयर को ह्यूमन क्वालिटी बताई गई है क्योंकि वो हक करता है ना, राइट. रिपीटेशन है वेरी वेरी, ये रिपीटेशन है, और एलिटेशन साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट एच, राइट, हग्स एंड हार्ट. ये आपका नोटिस करते जाना. दिस आर ऑल गुड फिगर ऑफ स्पीच. और जो मैंने एक आयरनी बताई, एक ऑक्सीमोरन बताई, ऐसी फिगर ऑफ स्पीच को तो आप छोड़ना ही मत. If you have any doubts, अभी ये पैराग्राफ की 2 बाकी है. If you have any doubts, I guess he will give you just one more caressing, cuddle, gentle touch. यहाँ पर्सोनिफिकेशन है. Bear is given a human trait, human quality, human characteristic of caressing. Alliteration भी है, sound of consonant G है, और रिपीटेशन है you for the poetic effect. तो ये आपका यहाँ पे bear वाला पैराग्राफ खत्म हुआ. अब आता है डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन whom, crocodile and hyena. Though to distinguish beast of prey and novice might nonplus, confused, perplexed, baffled, मैंने आपको बोला था confounded, बहुत सारे वर्ड है, वोकेबुलरी ऐसे बढ़ा दो आप लोग. एनास्ट्रॉफी है, एक तो इन्वर्जन है, इन्वर्जन इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस ऑफ पोएटिक इफेक्ट, जंबल वर्ड. और दूसरा एलिटेशन है, साउंड ऑफ एन is repeated in the word novice and non-plus. Non-plus मतलब के नेगेटिव नहीं है, my dear students. Then comes crocodile. The crocodile you always may tell from hyena thus. ऐसा लिखा है, the crocodile you always may tell from hyena thus. यहाँ पे भी एनास्ट्रॉफी है, इन्वर्जन है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंटेंस और द पोएटिक इफेक्ट. इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा है, एनास्ट्रॉफी का दूसरा नाम है इन्वर्जन. एनास्ट्रॉफी और एपोस्ट्रॉफी अलग है. नेक्स्ट वन जरा ध्यान से देखो. हैना कम्स विद मैरी स्माइल, बट इफ दे विप दे आर क्रोकोडाइल. एक तो पर्सोनिफिकेशन है, मैरी स्माइल हमारी तरह हंसता है. Hyenas are given the human quality, human trait, human characteristic of smiling as well as weeping. And metaphor भी यहाँ पे है. There is an indirect comparison between hyena and crocodile. Point of view of comparison is nothing but weeping big tears. ऐसा बोलते हैं, weeping big tears. Some of the students have joined just now, 2-3 minutes ago. इसमें एक महक मैसूरिया थी. यहाँ पे सब मेरे पास रिकॉर्ड आते हैं. दूसरा एक ट्रांसफर एफिडेविट भी है, एक वर्ड
ट्रांसफर एफिडेट मतलब वर्ड मैरी has been transferred from the henna to the smile with which they are connected. ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर, एफिडेट मतलब एडजेक्टिव या तो एट्रीब्यूट या तो एडजेक्टिव, एपिथेट मतलब कि यहाँ पे मैरी हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेना टू स्माइल इन विच दे आर कनेक्टेड. एंटीथेसिस भी है, टू अपोजिट वर्ड, स्माइल एंड वीप. When smile and weep, अगर यहाँ पे स्माइल है और वीप देखो नीचे है, इसमें बीच में बहुत सारे वर्ड है, कनेक्टिव है, कुछ ना कुछ है, दैट मीन्स इट इज एंटीथेसिस. कुछ भी नहीं हो, बाजू बाजू में हो, तो हम लोग कौन सी फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं? ऑक्सीमोरन. नेक्स्ट वन, द ट्रू chameleon is small, a lizard sort of thing. मेटाफोर है. Indirect comparison between chameleon and a lizard. Point of comparison is nothing but the creepy trait characteristic of a lizard that comes to chameleon of that camouflage quality. एक और देखो, he hasn't any ears at all. Litode से litode, has not. A negation is used to convey the positive meaning that chameleon is without ear. उसको नहीं है, ईयर नहीं है. और एक दूसरा भी है जो बहुत अरसों के बाद आया है ना, सॉरी, सिनेक डॉग, ईयर्स, ईयर्स स्टैंड्स फॉर कैमेलियन. ईयर्स यहाँ पे पार्ट ईयर स्टैंड्स फॉर द एंटायर कैमेलियन. बस अभी लास्ट में, इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज कैमेलियन यू सी. The rhyming words tree and sea are used in the same sentence, तो internal rhyming है. रिपीटेशन भी है, राइट, वर्ड ध रिपीटेड है अगर आप देखेंगे. एलिटरेशन भी है, द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट टी एच, THERE, THE, ट्री, टीज एक्सेट्रा. और लिटोड्स भी है लास्ट में. negation is used to convey the positive meaning that chameleon changes color, the property that what I explained, camouflage itself so that it remains unseen for many. That's how, my dear students, along with all the poetical devices, we have completed this poem, and this poem almost of 25 minutes or so. I think you need to complete this poem with poetic devices. Next time मतलब कि हम लोग और भी एक पोएम देखने वाले हैं, बट आज नहीं. तो एक पोएम है द बॉल पोएम, राइट. उसका पोएम का जो भी होगा वो आपको लेटर ऑन समझाएंगे. और अब आई थिंक